Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear students of grade 7, welcome to your science class. Today, the topic which will remain under discussion is related to your chapter number 2, plants and their system. Today's topic is transpiration, and this topic is mentioned on page number 23 and onwards. This topic, the first heading of transpiration is related to the definition of transpiration. What is transpiration? The process by which a plant loses water from its leaves into the surrounding air is called transpiration. ट्रांसपिरेशन एक ऐसा अमल है जिसमें एक पौधा अपना एक्स्ट्रा वाटर अपनी बॉडी से लीव्स के ज़रिए सराउंडिंग एयर यानी एनवायरनमेंट में लूज़ कर देता है या रिलीज़ कर देता है। यानी ये इसका एक्स्ट्रा वाटर होता है जो प्लांट बॉडी अपनी बॉडी से अपनी लीव्स की मदद से एक्सक्रीट आउट करता है, सीक्रीट कर देता है, यानी जिस्म से निकाल देता है। Next heading is related to the explanation that how does this process occur. So the next heading is explanation. So the water evaporates from cells inside the leaf first. Now if you will observe the structure of leaf, then the leaf contains different types of cells. For example, this upper layer present on the upper epidermis is called cuticle. Then upper skin of the leaf, that is called epidermis. Below this layer, finger-like shaped cells are present, and these finger-like or elongated cells beneath the layer of upper skin or upper epidermis are called mesophyll cells, and these mesophyll cells contain chloroplast in them. So what are these structures inside them? Chloroplast. Chloroplast contain chlorophyll, which is necessary for the food making process called photosynthesis. So these are mesophyll cells. And then beneath this layer some rounded or oval shaped spherical structures or cells are present, and these spherical cells beneath the layer of mesophyll cells are also the type of mesophyll cells. Only the difference between these mesophyll cells and these rounded shaped structure is this, that these mesophyll cells are called palisade mesophyll cells. Palisade. While these spongy or rounded shaped cells are spongy mesophyll cells. Spongy mesophyll cells. They also contain chloroplast. Now in between these cells you can also find vascular bundle, in which the two main parts which are present are called collectively vascular bundle, and these vascular bundles contain xylem and phloem in them. Xylem plus phloem, and you know very well what are the function of these two set of cells or tissues in the plant. Along with it, you can also find the lower layer, lower skin of the leaf. And the lower skin of the leaf is known as lower epidermis. Lower epidermis. Just like the upper skin or upper epidermis. So here I am also writing the term upper. So this is the upper layer of the leaf, while this is the lower leaf surface. So this lower epidermis contains some openings in it. So these are the openings. These are openings along with the guard cells. So what are these structures? These structures are bean shaped, having
a pore in the center. What are these bean shaped structures? Which are the two beans? French beans like. So these two bean shaped structures are called guard cells. And what is the function of the guard? क्या फंक्शन होता है गार्ड का? गार्ड जो है वो प्रोटेक्शन का काम करते हैं, सिक्योरिटी गार्ड जैसे. So in the similar manner, these guard cells protect the hole which is present in the center of these guard cells, and this hole is called stomata. I hope the structure of this leaf or internal structure of leaf is clear to you. Now we will apply the transpiration process on the structure of leaf in this way, that water evaporates from cells inside a leaf. For example, suppose these are the water molecules which are present in the mesophyll cells, and after the excessive amount in the cells of the plant, what happens? That these cells remove water molecules into the spongy mesophyll cells, then into the air spaces which are present among the cells, then xylem, again phloem, reaching into the space which is present between the cells, and finally to the pores. And what are these pores called? Stomata. So water evaporates from the cells inside the leaf, and water vapors then passes out of the leaf mainly through these tiny holes which are called stomata. And stomata are mainly found on the lower side of the leaf. Here you can observe that this lower epidermis indicates the lower surface of leaf. Lower surface of leaf. Now I'm going to explain this whole phenomena in Urdu. बेटा होता क्या है इस प्रोसेस में, ट्रांसपिरेशन में? सपोज कि ये आपका लीफ है, क्लियर? आपके इस लीफ के स्ट्रक्चर में जैसा कि आपको नज़र आ रहा है कि ये आपकी अपर स्किन है, जो कि हमने यहाँ मेंशन की भी, अपर एपिडर्मिस. वाइल दिस इज़ योर लोअर स्किन एंड कॉल्ड लोअर एपिडर्मिस, क्लियर? And there are some veins as well as midrib in the center. Now you can observe the midrib as well. ये midrib आपको कहाँ नज़र आ रही है? Midrib is present in the center here. ये आपकी midrib है leaf की. The midrib of the leaf contain vascular bundle having xylem and phloem in them. Even these midrib are continued with the branches, and these are the branches where xylem and phloem are present. Now most number or many number of stomata are present on the lower surface of the leaf, while there are some stomata also present on the upper surface. So ज़्यादातर जो आपके लीफ की लोअर सरफेस होती है उस पर इन टाइनी होल्स की तादाद ज़्यादा होती है, जो इस वक्त आपको यहाँ पर नज़र आ रहे हैं. And these tiny holes are actually the main parts, the main organs in this case, in the inside the leaf, which are responsible for the transpiration. That is the movement of water molecules from inside of the cell of leaf to the outside. And what is this outside? This outside area is called surrounding air. So अब हम ये कह सकते हैं कि हमारा जो लीफ का स्ट्रक्चर है वो रिस्पॉन्सिबल होता है ट्रांसपिरेशन के प्रोसेस के लिए, जिसमें प्लांट अपना एक्सेस वाटर यानी इजाफी पानी जो उसको ज़रूरत नहीं है वो सराउंडिंग एयर में रिलीज़ कर देता है. सो यहाँ पर आपको जो प्रोसेस नज़र आ रहा है दैट इज़ रिलेटेड टू द ट्रांसपिरेशन, जिसमें वाटर वेपर्स या वाटर मॉलिक्यूल जब लीफ की सरफेस या लीफ की बॉडी के अंदर या लीफ के सेल्स के अंदर बहुत ज़्यादा हो जाते हैं तो वो आहिस्ता आहिस्ता लीफ की सरफेस को छोड़ते हैं और लीफ की सरफेस यानी लोअर एपिडर्मिस की मदद से सराउंडिंग एयर में निकलना शुरू हो जाते हैं या इवेपोरेट होना शुरू हो जाते हैं. सपोज़ ये आपके वाटर
मॉलिक्यूल्स हैं जो अब इन्वायरमेंट में इवेपोरेट होना शुरू हो गए, ड्यू टू विच आपने अक्सर देखा होगा कि जो लीफ की सरफेस होती है, स्पेशली जो लोअर सरफेस ऑफ लीफ होती है, उसको जब आप टच करते हैं तो वो आपको कूलिंग इफ़ेक्ट देती है। कूलिंग इफ़ेक्ट की वजह क्या है कि लीफ अगर ओवरऑल भी आप देखें तो बहुत कूल सा फील होता है आपको। क्यों? रीज़न क्या है? क्योंकि उस टाइम पे जब वो आपको ठंडक महसूस हो रही होती है, एक्चुअली वो ट्रांसपिरेशन का प्रोसेस कर रहा होता है, जिसमें वो अपना बेकार पानी, इजाफी पानी लूज़ कर रहा होता है। तो वो छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स की शक्ल में उसकी लोअर सरफेस पे वो पानी जमा होना शुरू हो जाता है, और वहीं से फिर वो इन्वायरमेंट में ऐड हो जाता है, जिसे हम या जिस अमल को हम ट्रांसपिरेशन भी कहते हैं। These two diagrams shows the internal structure of leaf where stomata and their surrounding guard cells are present. So in first case here you can observe in this figure, when a plant has plenty of water, that suppose these are the epidermal cells inside the leaf, epidermal cells. So epidermal cells contain lots of water in them, and when there is a plenty of water inside the plant cells, what happens? The pressure inside the guard cells, here you can see these two guard cells, and guard cells are 2 in number. These are 2 cells, 1 and 2. So what happens to these guard cells when the plenty of water is present inside the cells? Guard cells, or the pressure inside the guard cells, increases, and the stomata in between them, so this hole, these two holes are actually called stoma. Stoma, or another term is stomata. Stomata. So what happens to stoma or stomata, and what are their function? These holes present in between the two guard cells are called stoma or stomata, and they will open. So this condition, in this diagram you can see open stomata. Open stomata, when the stomata are open. So this condition is called with open stomata, and these open stomata allows more transpiration. More transpiration will occur, and more amount of water releases out from the leaf cells. On the other side you can observe that guard cells become collapse with each other. They become collapse mean आपस में एक दूसरे से टकरा गए हैं, इनके दरमियान जो एक स्पोर था, एक नॉर्मली ओपनिंग थी, वो बंद हो गई है. सो इन दिस कंडीशन स्टोमेटा और स्टोमा क्लोज्ड. अब स्टोमेटा क्या हो गए? बंद हो गए. क्यों बंद हो गए? क्योंकि रीज़न क्या है? व्हेन गार्ड सेल्स एक्चुअली लूज वाटर, द प्रेशर इनसाइड देम falls or decreases, and the stoma will close, and the closed stomata slows down transpiration. So जैसे स्टोमेटा क्लोज हुए, क्या हुआ? ट्रांसपिरेशन की जो स्पीड थी वो स्लो हो गई. तो स्लो ट्रांसपिरेशन विल अकर. इस केस में ट्रांसपिरेशन का जो अमल है वो सुस्त हो जाएगा, बहुत कम रफ्तार से होना शुरू होगा. while in case of open stomata, more amount of water will be lost from the leaf surface, therefore more transpiration occurs. Is this thing clear? So we can also mention the stomata open and close in this form. So you have to make first bean shaped cells like this. These are the bean shaped cells, and in between you can see pore. So this is a pore, and around this pore you can find two guard cells. So these guard cells are in the form of curve. जब ये कर्व शेप में होते हैं, यानी फूले हुए होते हैं, आप इसको ये भी कह सकते हैं कि जब ये स्वेल हो जाते हैं, फूल जाते हैं, तो इस फूलने की वजह से क्या होता है कि इनके अंदर जो वाटर का प्रेशर है
यानी वाटर इनके अंदर बहुत ज़्यादा, वाटर यानी H2 फार्मूला मैंने लिख दिया है। सो वाटर मॉलिक्यूल इनके अंदर बहुत ज़्यादा प्रेशर के तहत फिल्ड अप हो जाता है, फिल्ड होना शुरू हो जाता है, जिससे ये आहिस्ता आहिस्ता स्वेल होना शुरू होते हैं। और ऑन द अदर साइड अगर हम थोड़ा सा स्टोमेटा क्लोज की बात करें तो उसमें क्या होता है कि बिल्कुल ये गार्ड सेल आपस में इस तरह से कोलैप्स कर जाते हैं और इनके दरमियान जो खुला हुआ हिस्सा है यानी स्टोमेटा, जिसे हम क्या कहते हैं, स्टोमा या स्टोमेटा, वो क्या हो जाता है, वो बंद हो जाते हैं। स्टोमेटा यानी ओपन नहीं रहते, ये क्लोज हो जाते हैं। और क्लोज होने की वजह क्या है, क्योंकि द प्रेशर यानी इन गार्ड सेल्स के अंदर जो वाटर का प्रेशर है वो आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू होता है। फॉल्स मीन water pressure falls here, and in this case water pressure increases. So this is the main reason why stomata close and open. So we can say that actually the transpiration is controlled by two sausage shaped guard cells which control the size of the hole, that is the stoma or stomata. And now the next heading is factors affecting the speed of transpiration. So what affects the speed of transpiration? बाद दफ़ा हम ये भी देखते हैं कि हमारे इर्द गिर्द कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो ट्रांसपिरेशन की रफ़्तार को, उसकी रेट को कम या ज़्यादा कर देती हैं। सो कुछ फैक्टर्स हम यहाँ पर पढ़ने जा रहे हैं जिसमें ट्रांसपिरेशन की रफ़्तार कम या ज़्यादा हो सकती है। सो कौन सी कंडीशंस हैं? सो स्पीड और रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन कैन बी अफेक्टेड बाय अ नंबर ऑफ थिंग्स विच आर ऑल्सो कॉल्ड फैक्टर्स। And what are these factors? Starting from the first one, first factor that affect the transpiration is temperature. The second is called wind, that is the moving air, तेज़ हवा. Then we have humidity, हवा में पानी या नमी, हवा में नमी को यानी पानी को humidity कहा जाता है. And the last factor is टाइम ऑफ डे. टाइम ऑफ डे से क्या मुराद है कि दिन का कौन सा हिस्सा है, नाइट है या डे है, दिन की रोशनी है या रात की रोशनी है. सो फर्स्ट वी आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम टेम्परेचर. So on warm days what happens, more water will evaporate from the leaf cells, so transpiration will speed up. अब टेम्परेचर अगर आपकी इन्वायरमेंट का ज़्यादा है, मिसाल के तौर पे गर्मियों के दिन हैं और बहुत ज़्यादा गर्म जो डेज़ होते हैं या बहुत ज़्यादा गर्मी का जो मौसम होता है, उसमें क्या होता है कि अल्लाह ताला ने पौधों को एक ख़ास जैसे कि आप कह सकते हैं कि ख़ास हमारे लिए तोहफ़ा बनाकर भेजा है कि वार्म डेज़ यानी गर्मियों के दिनों में पौधा लीफ सेल से ज़्यादा पानी इवेपोरेट करता है. सो इन वार्म डेज़ more water evaporate, यानी वाटर मॉलिक्यूल्स या वाटर वेपर ज़्यादा से ज़्यादा इवेपोरेट होते हैं. एंड ये कहाँ से होते हैं? लीफ सेल, जैसे कि मैं आपको बता चुकी हूँ. लिहाजा इस केस में जबकि आपके वार्म डेज़ का मतलब ये है कि टेम्परेचर इंक्रीज़ हुआ है. एरो अबव मैंने मेंशन इसलिए किया है कि टेम्परेचर क्या है, टेम्परेचर जो है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ है एनवायरनमेंट में, गर्मी बहुत ज़्यादा है. लिहाजा अल्लाह ताला ने पौधों को हमारे लिए किस तरह से जो है वो बहुत बड़ी नेमत बनाया कि हम गर्मियों के मौसम में अगर दरख्त के शेड में या किसी भी पौधे के, स्पेशली दरख्त के शेड में खड़े हो जाएं तो वो पौधा या वो दरख्त हमें ठंडक पहुंचाता है, कूलिंग इफ़ेक्ट हमें उससे हासिल होता है. रीज़न क्या होता है? क्योंकि गर्मी के दिनों में हम शेड्स की तरफ या साए की तरफ क्यों भागते हैं? क्योंकि वहाँ पर वाटर क्या कर रहा होता है, ट्रांसपिरेशन के अमल के नतीजे में इवेपोरेट हो रहा होता है, पौधे की सरफेस से, लीफ सेल से खारिज हो रहा होता है, निकल रहा होता है, जिससे हमें ठंडक महसूस होती है. सो अब इस केस में क्या होता है कि ट्रांसपिरेशन जो है उसकी स्पीड पे क्या फ़र्क पड़ता है? ट्रांसपिरेशन का अमल स्पीड अप हो जाता है. ट्रांसपिरेशन विल speed up. And what's the meaning of transpiration will speed up? कि ट्रांसपिरेशन का अमल तेज़ी से होता है, जो ये ज़ाहिर करता है कि
गर्मियों के दिनों में जब टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो ज़्यादा पानी लीफ सेल से खारिज होता है और ट्रांसपिरेशन का अमल भी उस लिहाज से बढ़ जाता है। Another important factor that affect the rate of transpiration is wind, यानी moving air. So what happens on windy days? जब बहुत तेज़ हवा चल रही हो. So what is the meaning of wind here? Moving air. तेज़ चलती हुई हवा को हम कहते हैं moving air, यानी तेज़ हवा wind. So on windy days, water vapor will be blown away as it comes out through the stomata. So transpiration will speed up. अब होता ये है कि लीफ सरफेस, सपोज़ कि ये एक लीफ है और बहुत ज़्यादा जो है वो तेज़ हवा चल रही है। तेज़ हवा के नतीजे में पौधा जो नॉर्मल ट्रांसपिरेशन का अमल कर रहा होता है उसमें वो अपनी बॉडी से अपना इजाफी पानी रिलीज़ कर रहा होता है। लेकिन जैसे ही तेज़ हवा चलती है तो लीफ की सरफेस या उसके अतराफ़ में जो वाटर मौजूद होता है वो बहुत तेज़ी के साथ ब्लो अवे होना शुरू हो जाता है। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड ब्लो अवे? ब्लो अवे का मतलब अपनी जगह से छोड़कर दूसरी जगह चले जाना, बहुत तेज़ी से उड़ना शुरू हो जाता है। और फिर ये वाटर वेपर जब अपनी जगह पर नहीं रहता तो मज़ीद वाटर लीफ की सरफेस से निकलता है। इस तरीके से मज़ीद बहुत ज़्यादा पानी पौधा अपनी बॉडी से इवेपोरेट करना शुरू कर देता है या रिलीज़ करना शुरू हो जाता है, जिसके नतीजे में, यानी ये कहाँ से होता है प्रोसेस? जैसा कि मैंने आपको बताया कि लीफ की जो लोअर एपिडर्मिस होती है वहाँ पर क्या चीज़ मौजूद है? वहाँ स्टोमेटा मौजूद है। तो स्टोमेटा के ज़रिए ज़्यादा से ज़्यादा वाटर ब्लो अवे, यानी एक तरीके से जो विंडी एयर है वो उसको ब्लो अवे कर देती है और स्टोमेटा से ज़्यादा वाटर इन्वायरमेंट में रिलीज़ होना या एक्सक्रीट होना शुरू हो जाता है। एंड व्हाट हैपन्स बाय दिस प्रोसेस और ड्यूरिंग विंडी डेज़ और ऑन विंडी डेज़ के ट्रांसपिरेशन पेस का क्या असर होता है कि ट्रांसपिरेशन, जैसा कि आपने देख लिया कि ज़्यादा से ज़्यादा वाटर अगर इवेपोरेट हो रहा है तो ट्रांसपिरेशन विल स्पीड अप। ट्रांसपिरेशन का प्रोसेस क्या होगा? ये बढ़ जाएगा। इस ज़्यादा से ज़्यादा वाटर पौधा रिलीज़ करना शुरू कर देगा, लूज़ करना शुरू हो जाएगा। क्लियर हो गई ये बात आपको? नाउ द थर्ड फैक्टर दैट इज़ रिलेटेड टू इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग द स्पीड ऑफ ट्रांसपिरेशन इज़ ह्यूमिडिटी। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ह्यूमिडिटी किसे कहा जाता है? ह्यूमिडिटी का मतलब होता है नमी, मॉइस्ट। ठीक है, मॉइस्चर का वर्ड भी इसके लिए इस्तेमाल करते हैं, या गीलापन। अगर इन्वायरमेंट में गीलापन यानी वाटर वेपर ज़्यादा हैं तो क्या होगा? और अगर इन्वायरमेंट में बिल्कुल ड्राई इन्वायरमेंट है यानी वाटर वेपर्स की तादाद कम है तो फिर क्या होगा? तो आपने दोनों सर्कमस्टांसिस इसको चेक करना है। सो आई एम हेयर यूजिंग द टर्मिनोलॉजी हेयर ऑन ड्राई डेज़, कि हम जब ड्राई डेज़ होता है हमारे पास, यानी हमारे ऐसे दिन जिसमें मौसम खुश्क होता है, खुश्की होती है मौसम में, यानी वाटर वेपर्स की मिकदार कम होती है आपकी एयर में। सो ऑन ड्राई डेज व्हाट हैपन्स, द एयर कैन होल्ड मोर वाटर वेपर्स, सो ट्रांसपिरेशन विल स्पीड अप। अब ड्राई डेज़ का मतलब होता है कि बिल्कुल खुश्क मौसम है और उस खुश्क मौसम में क्या हो रहा है एयर के अंदर, कि एयर ज़्यादा से ज़्यादा वाटर वेपर्स अपने अंदर होल्ड करके रख सकती है। एयर कैन होल्ड मोर वाटर, और ये मोर वाटर कहाँ से आ रहा है खुश्क डेज़ में या आपके ड्राई डेज़ में? ये आ रहा है प्लांट की सरफेस यानी लीफ से, स्टोमेटा के ज़रिए। तो इस केस में भी अल्लाह ताला ने हमारे लिए एक बहुत बड़ी नेमत रखी है कि अगर हमारे गर्मी के दिन हों, वार्म डेज़ हों या ड्राई डेज़ हों, उसमें क्या होगा कि ट्रांसपिरेशन का जो अमल है वो मज़ीद स्पीड अप हो जाएगा। ट्रांसपिरेशन क्या होगी? ट्रांसपिरेशन और द रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन विल स्पीड अप। स्पीड अप का मतलब रफ्तार तेज़ हो जाना, स्पीड का तेज़ हो जाना, और ज़्यादा से ज़्यादा वाटर मॉलिक्यूल्स का प्लांट सरफेस से लीव करना या लूज़ करना। तो ये समझ में आ गई होगी यकीनन बात। लेकिन अगर हम इसको ऑपोजिट करें, ड्राई डेज़ की जगह हम यहाँ पर वेट डेज़ रखें, जैसे ह्यूमिडिटी,
कैसी ह्यूमिडिटी? जिसमें हवा में पानी यानी वाटर वेपर्स ज़्यादा मकदार में मौजूद हैं, तो उस सूरत में एयर जो है वो ज़्यादा मकदार में वाटर होल्ड नहीं कर पाएगी और ट्रांसपिरेशन जो पौधों से होगा उसकी रफ्तार कम हो जाएगी। तो ये ऑपोजिट फिनोमेना है जो कि आप इसको अप्लाई करेंगे यहाँ पर भी, विंड के लिए भी और टेम्परेचर के लिए। नाउ द लास्ट फैक्टर with that affect the speed of transpiration is the time of day, and only you have to differentiate between two timings here, during the day as well as at night. So what happens during the day? Time of day means that normally stomata are opened or only open during the day. स्टोमेटा का जो ओपनिंग टाइम है ज़्यादातर वो किस टाइम पे खुले रहते हैं, किस टाइम पे वो होल खुला रहता है जिससे वाटर वेपर्स जो हैं वो पौधे से लूज़ हो रहे होते हैं। सो ज़्यादातर पौधों में स्टोमेटा दिन के वक्त खुले रहते हैं और रात के वक्त थोड़ी सी ये कह सकते हैं आपके इनकी जो पोर है, इनका सुराख है वो बंद हो जाता है। सो ट्रांसपिरेशन विल बी फास्टेस्ट देन। In this case, what effect will be produced on the transpiration? So transpiration की जो स्पीड है उस पर क्या फ़र्क पड़ता है कि अगर दिन के वक्त स्टोमेटा खुले रहें तो ट्रांसपिरेशन विल स्पीड अप। इस केस में भी आप कह सकते हैं कि ट्रांसपिरेशन की स्पीड ज़्यादा हो जाएगी। विल बी फास्टेस्ट का मतलब क्या होगा कि ट्रांसपिरेशन की स्पीड ज़्यादा होगी और पौधा ज़्यादा से ज़्यादा वाटर अपनी बॉडी से या अपने लीफ सेल्स में से इवेपोरेट करेगा। लेकिन अगर आप इसका रिवर्स ले लें और कहें कि स्टोमेटा आर क्लोज्ड ड्यूरिंग और एट नाइट, तो क्या प्रोसेस होगा कि ट्रांसपिरेशन की जो रफ्तार तो दूर की बात है, ट्रांसपिरेशन का प्रोसेस ही रुक जाएगा, या तो स्लो डाउन होना शुरू होगा और आहिस्ता आहिस्ता एक वक्त आएगा कि ट्रांसपिरेशन बिल्कुल रुक जाएगी। सो दीज आर द 4 फैक्टर्स दैट अफेक्ट द स्पीड ऑफ ट्रांसपिरेशन। The next topic is transpiration stream, that is related to transpiration. Now as a plant loses water by transpiration, here you can see in this figure, this is the structure of leaf, that is the internal structure of leaf. So more water is pulled up in the xylem tube to replace it. Here you can see the leaf vein which contains xylem mainly and phloem as well. So what happens and how you will relate to the routine example. So suppose this is a straw, drinking straw that is normally used to sip a drink. So just as a drink is pulled up as drinking straw, when you take a sip from here and you will just insert this straw in your drinking glass or drinking juice. So what happens when you will take a sip from this place at this opening? What happens that the drink or water or juice is actually sucking up from this area, from this opening, which is inserted inside a glass or a juice. So at the same time, water enters the xylem from the roots here. आपने ड्रिंकिंग स्ट्रॉ की एग्ज़ाम्पल को अगर आप इस पूरे प्लांट के स्ट्रक्चर पर अप्लाई करें तो आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा कि सपोज़ कि हम अपनी ड्रिंकिंग स्ट्रॉ को कुछ इस तरह से बना लें कि हमारी ये जो ड्रिंकिंग स्ट्रॉ है ये थोड़ी देर के लिए आप सोचिए कि ये ऐसा स्ट्रक्चर है, ठीक है। इसको आप थोड़ी देर के लिए ऐसे बेंड कर लें तो ये क्या है, तो ये स्ट्रक्चर जहाँ पर आप यानी ये एरिया जो आपने ग्लास या अपने जूस के पैकेट के अंदर इंसर्ट किया हुआ है वहाँ से सकिंग प्रोसेस हो रहा है और जहाँ से आपने सिप लेनी है वो आपका ये एरिया है। तो ये सिपिंग हो रही है और यहाँ से आपका जो भी ड्रिंक है वाटर है यहाँ से एंटर हो रहा है। तो थोड़ी देर के लिए आप पूरे प्लांट के स्ट्रक्चर को इस ड्रिंकिंग स्ट्रॉ से रिलेट कर दें। क्लियर हो गई बात अब आपको। सो अब आपने क्या करना है, अपने प्लांट को 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है इन विच दिस पार्ट ऑफ द प्लांट इज कॉल्ड रूट एरिया, this vertical region or part of the plant is called stem, and
दिस होल एरिया और पार्ट ऑफ द प्लांट इज़ कॉल्ड लीफ. सो ये आपका एरिया लीफ को इंडिकेट कर रहा है. ये आपका जाइलम ट्यूब्स हैं इन स्टेम पोर्शन, और यहाँ पर आपके रूट के सेल्स और रूट हेयर्स मौजूद हैं. सो व्हाट हैपन्स ड्यूरिंग ट्रांसपिरेशन स्ट्रीम. ट्रांसपिरेशन स्ट्रीम कैसे सेटअप होती है? सो स्टार्टिंग फ्रॉम फर्स्ट, दैट वाटर विच इज़ प्रेजेंट इन द सॉइल पार्टिकल हेयर. वाटर कैसे मौजूद है? समझ लें कि वाटर मैं ग्रीन से यहाँ इंडिकेट कर रही हूँ कि ये वाटर आपके थिन फिल्म या थिन लेयर की शक्ल में सॉइल पार्टिकल्स के दरमियान मौजूद हैं. अब प्लांट की जो रूट्स हैं वो अपनी रूट हेयर्स की मदद से क्या करती हैं? दैट वाटर एंटर्स इनसाइड द रूट हेयर और इनसाइड रूट्स बाय मीन्स ऑफ दीज रूट हेयर विच आर प्रेजेंट हेयर. ये आपकी क्या हैं? ये रूट हेयर्स हैं. नाउ वाटर एंटर्स रूट हेयर्स फ्रॉम द सर्फेस ऑफ द सॉइल पार्टिकल. ये आपको राउंडेड शेप में या ओवल शेप स्ट्रक्चर्स क्या नज़र आ रहे हैं? ये सॉइल पार्टिकल. और ग्रीन एरिया जो मैंने बताया ये वाटर है. तो वाटर कहाँ से एंटर हो रहा है? आपकी रूट के अंदर, और रूट हेयर्स ये मौजूद भी हैं आपके सामने. सो वाटर सॉइल पार्टिकल से रूट हेयर्स की मदद से आपके रूट्स में दाखिल हो रहा है. सो दिस इज़ द मेन रूट. एंड आफ्टर एंटरिंग इनटू द root from the root hairs, it enters into different cells of roots by means of a process, and the name of this process is called osmosis. So water moves by means of a process or a transport process for water called osmosis. So this will become your step number 1 in case of the transpiration stream. ये एरिया आपको आई थिंक क्लियर हो गया होगा कि इसमें क्या आपने बताना है. इसमें ये बताना है कि वाटर एंटर्स रूट हेयर्स फ्रॉम द surface of the soil particles, and in the second step here where I have written osmosis, the water moves from cell to cell. Water moves from cell to cell, and cell to cell movement of water is done through osmosis. Now the third step, water is pushed into and up the xylem tubes. So finally water is pushed into and up the, up means अब यहाँ से हम इसको stem की xylem tubes में या stem में जो xylem tube मौजूद हैं वहाँ पर लेके जा रहे हैं. So water is now pushed up. यहाँ पर third step आपका start होता है. And in this third step you can see that water is pushed up. कहाँ पर? ये कहाँ है xylem tubes? xylem tubes आपकी मौजूद हैं in stem. So water यहाँ पर क्या हो रहा है? water ऊपर की तरफ मूव कर रहा है. water moves up. water moves up. Now step number 3 is completing up to when water moves from roots into the stem and it is pushing upward and into the as well xylem tubes. Next step, that is step number 4, is related to when water is pulled up the xylem tube. Finally you can observe that now water is turning or changing its direction towards the, so this is the next step number 4 where water is pulled up the xylem tube and finally it is reaching to the leaf vein. And from leaf vein, when finally it enters into the leaf vein, it moves in different direction even where the deficiency of water occurs. So some of the water after its utilization moved into the air spaces which are present here in the leaf cells, as well as extra water is removed or is lost through these tiny holes called stoma surrounded by guard cells into the surrounding air. So step number 5, water evaporates from leaf cells into the air spaces. So this will become your step number 5 in which water evaporates from, वाटर कहाँ से इवेपोरेट हो रहा है, कहाँ से निकल रहा है? वाटर इवेपोरेट्स फ्रॉम लीफ
or cells of leaves, different leaf cells, including upper skin, that is upper epidermis, mesophyll cells, as well as the lower skin, that is the lower epidermis, and finally reaches up to stoma, which are protected by guard cells. So from leaf cells, this water evaporates into air spaces first, and from air spaces finally it moves into the surrounding air. Now step number 6, that is the last step. Water vapors passes out the leaf through open stomata. So this is the last step which you can observe here, step number 6. And what is happening at this point, which is present in the leaf, lower skin of the leaf, that you can easily observe here the openings which are present or protected by guard cells. So finally, when the water enters into the leaf air spaces, these are the leaf air spaces which are present between or among cells, among mesophyll cells. Clear? So what are these area called? These are the air spaces of leaf. Air spaces of leaf. And from air spaces of leaf, finally water is pushed into and up the xylem tubes, you can easily observe here, and finally passes out of the leaf through these open stomata. Now not only water is pushed up into and up the xylem tube by pressure, but these xylem tubes are also present in the leaf vein. So from the leaf vein, all the water, extra water, is removed through these stomata into the surrounding air. So this is the surrounding air. Now dear students, this is the structure of root, and along with I will also draw the root hairs. So root and root hairs mainly perform an important function in transpiration or transpiration stream as well. Now roots are covered in root hairs. Now you can observe I am making lots of or millions of root hair which are present on it. So I am making some of the root hairs which are present on the roots. Roots ke upar, so this is the main structure of the root, while these blue hair like structure present on the root are called root hairs. Now roots are covered in root hairs. And what are root hairs? Root hairs are actually the extension or small extensions of the outer cells of the root. Small extensions, outgrowth. Small extensions of outer cells of the root. यानी रूट हेयर्स क्या हैं? रूट हेयर्स रूट के जो आउटर यानी बाहर के सेल्स होते हैं उनके एक्सटेंड होने से, उनकी ग्रोथ से के नतीजे में बनती हैं. जिस तरह से मिसाल के तौर पे मैं इसको आपके सामने ऐसे ड्रॉ कर लेती हूँ. सपोज़ कि ये आउटर स्ट्रक्चर है एपिडर्मिस, रूट का एपिडर्मिस विच इज़ द आउटर स्ट्रक्चर और आउटर सेल ऑफ द रूट. अब इसमें से कुछ सेल्स, एक और सेल या एक 5 सेल्स मैं बना लेती हूँ, 1 2 3 4 5. इसमें से कुछ सेल्स बाहर की तरफ इस तरह से ग्रो करते हैं. क्लियर? इसी तरीके से एक और सेल को मैं इरेज करके इस तरह आउट ग्रोथ बना लेते हैं. सो व्हाट आर दीज आउट ग्रोथ्स, व्हाट आर दीज एक्सटेंशंस? ये एक्सटेंशंस क्या हैं? ये रूट के आउटर सेल्स हैं. ये आपके रूट के आउटर सेल्स हैं और इन आउटर सेल्स की बाहर की तरफ इस तरह से बढ़ने और इस तरह के जो मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर्स हैं इनको बनाने के बाद जो टर्म आपके सामने आती है वो है रूट हेयर. ये क्या है? ये रूट की रूट हेयर्स कहलाते हैं. ये क्लियर हो गई? सो फाइनली वी कैन से रूट हेयर्स आर द टाइनी एक्सटेंशन ऑफ द आउटर सेल्स ऑफ द रूट. नॉट ओनली दिस, वी आर हेयर गोइंग टू डिफाइन द ट्रांसपिरेशन स्ट्रीम एज वेल. तो आपने यहाँ पर ट्रांसपिरेशन स्ट्रीम को एक दफ़ा फिर से डिफ़ाइन करना है कि जो हमने टॉपिक रिलेट किया था ट्रांसपिरेशन से ट्रांसपिरेशन स्ट्रीम, तो वो क्या है?
सो रूट हेयर्स क्या करती हैं? रूट हेयर का सबसे इम्पॉर्टेंट फंक्शन ये होता है दैट दे इंक्रीज सरफेस एरिया ऑफ द रूट्स। ये रूट हेयर का एरिया बढ़ाती हैं। सरफेस एरिया का मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा रूट्स को एक्सटेंड कर देती हैं, जिसकी वजह से रूट्स मैक्सिमम अमाउंट में वाटर को सॉइल से यानी ज़मीन से एब्ज़ॉर्ब करती है। सो रूट्स का मैक्सिमम अमाउंट में वाटर एब्ज़ॉर्ब करना या टेक इन करना यानी एब्ज़ॉर्प्शन करना, किस चीज़ का? एब्ज़ॉर्प्शन ऑफ वाटर। तो वाटर का ज़्यादा से ज़्यादा एब्ज़ॉर्प्शन रूट का किस वजह से मुमकिन होता है? ड्यू टू द इंक्रीज सरफेस एरिया ऑफ द रूट। यहाँ पर मैं पूरा लिख देती हूँ, रूट हेयर्स। तो रूट्स ज़्यादा से ज़्यादा अपनी एब्जॉर्प्शन जो है वो करती हैं किसकी मदद से? रूट हेयर्स की मदद से। जितनी ज़्यादा रूट हेयर्स होंगी उतना ज़्यादा वाटर जो है वो पानी आपका प्लांट एब्जॉर्ब करेगा बाय मीन्स ऑफ रूट और रूट हेयर्स। सो फाइनली अ फ्लो ऑफ वाटर इन द जाइलम फ्रॉम रूट्स टू द लीव्स। यानी फाइनली अगर हम ट्रांसपिरेशन स्ट्रीम को डिफ़ाइन करें तो ट्रांसपिरेशन स्ट्रीम क्या है? Transpiration stream is actually related to the flow of water। ये पानी का एक बहाव है, पानी के बहने का एक ऐसा सिलसिला है जिसमें the flow of water, so here you can write the definition as well, that is flow of water in the xylem। so you mention the area where the water flows in the xylem फ्रॉम रूट्स। कहाँ से वाटर फ्लो करता है, बहता हुआ जाता है? फ्रॉम रूट्स, यानी रूट्स से रूट हेयर के ज़रिए कहाँ जाता है? टू द लीव्स, और टू लीव्स ऑफ द प्लांट इज़ कॉल्ड ट्रांसपिरेशन और ट्रांसपिरेशनल पुल, दैट इज़ ऑल्सो कॉल्ड ट्रांसपिरेशन स्ट्रीम एज वेल। तो स्ट्रीम का क्या मतलब है? स्ट्रीम का लफ्ज़ आया है नदी से। स्ट्रीम, जो नदी एक तरीके से क्या करती है, इसमें पानी बहता हुआ फ्लो करता हुआ जाता है। तो जिस तरह से पानी का एक फ़्लो आपने नदी या किसी स्ट्रीम में देखा, इसी तरह से पानी के एक डायरेक्शन यानी एक पॉइंट से दूसरी डायरेक्शन की तरफ बहना या फ़्लो करना, पानी के इस फ़्लो को जिसमें वो रूट से लीफ की तरफ फ्लो करता है थ्रू जाइलम सेल और जाइलम ट्यूब, इज कॉल्ड ट्रांसपिरेशनल स्ट्रीम और ट्रांसपिरेशन स्ट्रीम। So this is the end of today's lesson related to the transpiration, factors affecting transpiration, as well as in the end we have come across transpiration stream as well. So Allah